وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ معاشی ترقی کے لیے سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، خراب معیشت کو ٹھیک کرنے کا مشورہ دیں گے تب ہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا ٹیک آف کی صورت میں IMF کو ٹاٹا بائے بائے کہہ دیں، ان کے ساتھ وعدوں کی پاسداری ہماری ذمہ داری ہے، وقت آنے پر IMF کو خیر بات کہیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خواہش ہے کہ شرح سود 6% پر لائیں، اس وقت شرح سود 13% پر ہے، مزید 8 پوائنٹس کی گنجائش موجود ہے۔ وہ کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں خطاب کر رہے تھے۔ ہو جائے گا، آپ آئیں بیٹھیں، ملک کے اندر میکرو لیول پر سٹیبلٹی آئی ہے، معاشی استحکام میکرو لیول پہ آیا ہے، اس کو اب ہم نے کنورٹ کرنا ہے اکنامک گروتھ میں، کہ اب ہمیں گروتھ کی طرف بڑھنا ہے۔ اور جو لوگ یہ ڈراوا دے رہے ہیں کہ جناب گروتھ ہوگی تو انجن جو ہے وہ ہیٹ اپ ہو جائے گا، آپ آئیں بیٹھیں، مل کر یہ بتائیں کہ کس طریقے سے اکانومی کو اس کو کس طرح ہم نے مینج کرنا ہے۔ میں آپ کو دعوت جلد دوں گا اور آپ سے میں کھلے دل کے ساتھ آپ کی باتیں میٹھی ترش کڑوی وہ سنوں گا، کیونکہ اگر ہر چیز بہت اچھا ہے تو آئی تھنک دین وی آر لیونگ ان فولز پیراڈائز، لیکن اس کے ساتھ مجھے آپ کی بھرپور معاونت چاہیے۔ ہم ایک IMF پروگرام کے موڈ میں ہیں، ہمیں IMF کی جو کمٹمنٹس ہیں ان کو آنر کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جناب اب ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں آئیں، ان کو جی ٹاٹا بائے بائے، وی ول سے دم بائے بائے اینڈ گڈ بائے فار ایور، بٹ وین دا ٹائم کمز۔ خدا کا شکر ہے کہ 22% سے 13% پہ آ چکا ہے۔ اب یہاں پر بیٹھے ہیں ہمارے گریٹ مائنڈ انویسٹرز کہ جی گیپ ہے، ابھی بھی اویلیبل ہے، 8 پوائنٹس اویلیبل ہیں۔ میں تو چاہوں گا کہ 8 پوائنٹس اور کم ہو جائیں، یہ 6 پہ آ جائے، بٹ اٹ ہیز ٹو بی ڈن۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ جلاؤ گھراؤ کرنے کا کہنے والا آپ کا ہمدرد نہیں، جس کے اپنے بچے باہر ہیں وہ دوسروں کے بچوں کو کہتا ہے کہ جلاؤ گھراؤ کرو، کچھ بھی ہو جائے ملک کے خلاف نہیں جانا۔ جنہوں نے بہکاوے میں آ کر آگ لگائی وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، اگر انہوں نے اچھا کام کیا ہے تو معافی مانگ کر باہر کیوں آئے؟ جو آپ کو یہ کہتا ہے اپنے ملک کو جلا دو، اپنے ملک کی بلڈنگز عمارتیں جلا دو، ایک صوبے کو کہتا ہے دوسرے صوبے پہ حملہ کر دو، وہ آپ کا سگا نہیں ہے، وہ آپ کا ہمدرد نہیں ہے۔ میں اپنے بچے تو باہر بٹھا دوں اور کہوں کہ یہ تم لوگ باہر نہ نکلنا، تمہیں کہیں خدا نخواستہ چوٹ نہ لگ جائے، دوسروں کے بچوں کو میں سڑک پہ کھڑا کر دوں اور کہوں کہ گولیاں چلاؤ، پیٹرول بم چلاؤ اور گھیراؤ کر دو، جلاؤ کر دو۔ جو بچے ملک میں کسی کے بہکاوے میں آ گئے، انہوں نے آگ لگا دی، انہوں نے گولیاں چلا دیں، آج وہ بچے جیلوں میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ ان بچوں نے اب معافی مانگی ہے۔ اگر اتنا اچھا کام کیا تھا تو معافی مانگنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حسان نیازی نے فوجی وردی کو ایک ڈنڈے پہ ٹانگ کے اس کی اتنی تضحیق کی، یہ وہی لوگ ہیں جو وہ یہ وردی پہنتے ہیں اور ہماری سرحدوں پر ہمارے ملک کو بچانے کے لیے، آپ کو بچانے کے لیے جانیں بھی قربان کرتے ہیں۔ حسان نیازی، اس کو 10 سال قید ہو گئی ہے، اس کا فیوچر تباہ ہو گیا ہے۔ ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ آپ ان کو اپنی وجہ سے کسی کی جو ایک اس کی لالچ ہے اقتدار کی، اس کی وجہ سے اس کا ایندھن نہیں بننا آپ نے۔ یہ مکافات عملی ہے جو آپ بھگت رہے ہیں آج۔ تہذیب کے دائرے میں رہ کے بھی سیاسی مخالفت ہو سکتی ہے۔ براہ راست لے چلیں گے آپ کو کراچی۔ وزیر اعظم نے فیس لیس کسٹمز اسیسمنٹ سسٹم کے افتتاح کے موقع پر افسران سے بات چیت کی ہے۔ اپریزرز یا پرنسپل اپریزرز بھی اندر جاتے ہیں، ان کے لیے سر ہم نے یہاں پہ لاکرز بنائے ہیں، وہ اپنے موبائل فونز، اپنے گیجٹ سارے ان لاکرز میں ڈالیں۔ پورٹس پہ تھوڑا ٹائم بھی بڑھتا ہے نا سر، وہ ریڈ چینلز کی وجہ سے بڑھتا ہے، کیونکہ اس میں ہم نے کنٹینر گھمانا ہوتا ہے، اس کو ایگزامن کرنا ہوتا ہے، تو دیٹس دا وے سر۔ سر ریلیز کی بات جی سر، ہاں تو یہ سسٹم ہے سر۔ لیکن اب دیکھنا اس میں سر جب فیسلس کی آپ بات کرتے ہیں تو یہاں پر پورا ایڈریس ہے سر جو کنسائنی ہے سر، اس کا پورا ایڈریس ہے، سارا اپنا نام ہے، ہر چیز ہے، تو بٹ ہی ڈزنٹ نو دا GD نمبر، ہی ڈزنٹ نو دا نیم آف دا آفس۔ جی سر، نمبر یہاں نہیں نہیں، اس کو ان سے ماسک کیا گیا۔ ٹھیک
जीडी नंबर को सर मास्क किया गया है, क्लियरिंग एजेंट के नाम को मास्क किया गया है, उसके लाइसेंस नंबर को मास्क किया गया है। तो जिन चीज़ों की यानी हो सकता है ना चांस के इनके थ्रू एक कुछ इस तरह का बिल डीलिंग हो सकती है, उनको मास्क किया। सर डिस्पोजल भी इन्होंने इसी एनवायरनमेंट में करना है। इन केस सर अगर ये डिस्पोजल नहीं करेंगे तो जीडी नेक्स्ट डे किसी भी और अप्रेजर को मार्क हो जाए। मैं वो समझ गया। वो जरा दिखाइए यंग मैन, वो जो आपने एड्रेस दिखाया था, अहमद एजेंसीज सर ये लिखा है, नोटिफाइड पार्टी सर ये तो दिस इज नाउ नोन कि ये अहमद एजेंसी है। तो सर कंसाइनिंग का तो होगा, बिल ऑफ लेडिंग पे तो सर होगा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। नहीं पॉइंट ये है कि वो जो नोटिफाइड पार्टी अहमद एजेंसी सर तो ये तो बहुत अच्छे आदमी सर, अल्हम्दुलिल्लाह वंडरफुल पर्सन, कोई खुदा न खास्ता इनको नोटिफाई कर दे कोई आपका मेरे पास इस बात सर इसमें मैं थोड़ा सा कर सकता हूँ सर। आप मेरा पॉइंट समझें। मैं पॉइंट समझता हूँ सर। इस पर सर ऐसे है कि इसके पास जो जीडी आई है ना, इसका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कितना होगा, 10 मिनट्स एट द मैक्स। इससे पहले यहाँ आने तक जीडी किसी को नहीं पता। Nobody knows the name of the appraiser. वही 10 मिनट से क्रूशल है। Sir, he has no communication means here. सर इसने जीडी कंप्लीट करके जाना है यहाँ पे, ये सारी कंप्लीट होगी सर, बाद में कांटेक्ट हो भी जाए तो सर उसका काम हो चुका होगा। ये तो सर ब्यूटी है फोन इसकी। में कुछ नहीं है, विल कंप्लीट इट। No mainstream social media app, no connection with the outside world. सर आपको दिखाते हैं, आपको किचन दिखाते हैं, सर किचन के अंदर है, चाहे यही बनाते हैं। किचन अंदर है, नमाज अंदर है, नमाज की वॉशरूम एक की दफा सर। जो आएगा वो सिर्फ जो है जब छुट्टी होगी शिफ्ट के बाद ही, अच्छा ये नहीं खोलेगा सर। एक्सेप्ट इफ देयर इज सम इमरजेंसी, तो बीसी के कमरे में एक फोन है, वहाँ पे जाके तो आपका मतलब ये है कोई यहाँ टेलीफोन है कुछ भी नहीं सर। सर, यहाँ पे इंटरनेट है इंटरनल, और इसके ऊपर सर इनके जो सिस्टम है उस पर कोई फेसबुक कोई ईमेल कुछ भी नहीं सर वी होगा। कैन से तो ये मैक्स 10 मिनट से सर सिंगल आइटम की तो 5 मिनट में भी निकल जाएगी, जिसमें कोई 3-4 आइटम है उसमें 10-15 मिनट लग जाएगा। सीधा सा हो गया आपके यहाँ। सर फेसलेस में जी सर मुझे 3 वीक्स 3 वीक्स हो गए। तो नॉर्मली कितने अर्से में आप ये डिस्पोज ऑफ कर देते हैं? GD जो है सर सिंगल आइटम जीडी हमारे पास विद इन 10 मिनट्स के अंदर हो जाती है। अगर 3-4 आइटम्स हो तो सर 15 to 20 मिनट्स होते हैं। अच्छा। जैसे ये सर हमारे पास ये सिंगल आइटम जीडी है जिसमें सिर्फ सोलर पैनल्स ही हैं, तो सर मैक्सिमम ये विद इन 10 मिनट्स ही हो जाएगी। हम साथ ही इसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं, अगर अनॉबली हमें फील हो तो सर इसकी एग्जामिनेशन कॉल करते हैं, अगर डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हो तो डॉक्यूमेंट्स सर इसके कॉल करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हमारे पास रूलिंग्स हैं, फिर रूलिंग्स और डाटे के मुताबिक हम इसकी वैल्यूज अप्लाई करते हैं। तो एवरेज आप बता रहे हैं 15 मिनट। जी सर 10 मिनट सर, सिंगल आइटम एवरेज 10 मिनट्स में सर कंप्लीट। राशिद नगड़ियाल ने जो मुझसे गाड़ियाँ दिलवाई थी, सबसे पहले गाड़ियों में हकदार तो ये बच्चे हैं, इनको दिलवाएं पहले आप। अच्छा आप राशिद से बात करें तो ये डेढ़ हुआ दी एंकर शीट ऑफ दिस एंटायर प्रोग्राम। सर आपने जो रिवॉर्ड का बीच में एक हमें इसमें ऑप्शन दिए सर परफॉर्मेंस बेस, सर वो भी एक जैसे पैसे मिलेंगे सर, हम सबसे पहले इनको करेंगे। चीफ कलेक्टर साहब ने मुझे कहा है सर ये वो लोग हैं जिनका हमने थोड़ा सा ये कॉन्फिडेंस लेवल इज बेटर, और उस हिसाब से तो उस पर डबल चेक है उनके भी, अगर उनसे गलती होती है तो सर यहाँ पे पॉइंट होती है। 10% सर रैंडम पिक होती है उनके पास। तो आपको भी 2 हफ्ते हो गए? बिल्कुल सर, नया सिस्टम है हम यहाँ पर, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ कोई भी नहीं सर, बिल्कुल। वेल डन जी, बहुत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कराची में फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम के इफ्तिताह के मौके पर अफसरान से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने उनसे इस सिस्टम के बारे में पूछा है और इस मौके पर उनका ये कहना था कि इस फेसलेस सिस्टम की वजह से करप्शन के खात्मे में मदद मिलेगी और मज़ीद सिस्टमेटिक होगा ये सिस्टम। और साथ ही साथ रिवॉर्ड प्रोग्राम से मुतालिक भी उन्होंने बात की कि जो अफसरान और जो अहलकार अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं सिस्टम को अपग्रेडेशन से मुतालिक, उनको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि बानी पीटीआई को जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलतें मैसर हैं। बानी पीटीआई को जेल में सहूलतों के अदम दस्तयाबी का झूठा प्रोपोगंडा किया गया। तासुर दिया जा रहा है कि जेल में बानी पीटीआई के साथ जुल्म हो रहा है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। बानी पीटीआई इमरान खान साहब के जो लोग उनसे मुंसलिक हैं और उनके जो रवैये हैं, ऐसे लोगों से कुछ भी जो है वो आप तवक्को जो है वो कर सकते हैं और वो किसी हद तक भी जो है वो जा सकते हैं। उन्हें जो सहूलतें हासिल हैं
उनमें किसी किस्म का खलल हो, अकॉर्डेंस विद लॉ जो सहूलत उन्हें वहाँ पे हासिल होनी चाहिए वो उन्हें हासिल नहीं है। तो इस वीडियो और इसमें की जाने वाली गुफ्तगू से ये भी ज़ाहिर होता है कि ये प्रोपेगेंडा भी जो है ये जानबूझ के किया जाता रहा है। अलीमा खान साहबा ने एक दफ़ा ये बात भी की थी कि जी उन्हें वहाँ पे जहर देने की जो है वो बात हो रही है। अली अमीन गंडापुर साहब और उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब के मुतल्लिक़ जो ज़िक्र है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये गौर तलब इसलिए हैं कि ये इन फाइट उन लोगों में है जो इस वक्त पीटीआई के करता धरता हैं। उनकी रिहाई के प्रेशर से मुतल्लिक़ बात है तो प्रेशर तो सिर्फ उनके ज़ुबानी कलामी बयानात का ही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत कर दी। बानी पीटीआई ने मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी को देने की इजाज़त दे दी। बानी पीटीआई ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए तीसरे नशिस्त की ज़रूरत है, जबकि डील का तासुर बानी पीटीआई पहले ही ज़ाइल कर चुके हैं। आज खान साहब ने कहा है कि जो हमारे मुतालबात है वो बेशक आप इन राइटिंग दे दें। तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के टेबल पे वो जो मुतालबात है हमारे वो हम इन राइटिंग दे देंगे। और इस मरतबा खान साहब ने ये भी कंसेशन की है कि मुलाकात कमेटी की नहीं भी होती तो एक मीटिंग हम कर लेते हैं, लेकिन अगर आइंदा नहीं होता तो फिर दोबारा देखें। जहाँ तक डील का ताल्लुक है तो उसका तासुर खान साहब भी ज़ाहिर कर चुके, हम भी कह चुके और सब डिनाई कर रहे हैं कि ये किसी डील के लिए नहीं है। हम चाह रहे हैं कि मुल्क और कौम के लिए हमें बैठे एक लिमिटेड पर्पस के लिए कि आप कमीशन बना लें और आप जो रिहाई है ये होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ये कहते हैं कि अवाम को कोई उम्मीद है तो सिर्फ अदालतों से है। अगर सुप्रीम कोर्ट आवाज़ नहीं सुनेगी तो लोग कहाँ जाएंगे। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता, ये इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है। पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी आइन नहीं, हम मुज़ाकरात में संजीदगी से बैठे। अगर हुकूमत संजीदा है तो आगे बढ़े। इस वक्त एक आवाम के लिए अगर कोई दरवाज़ा है, कोई तवक्कु है, कोई उम्मीद है तो वो कोर्ट्स है। अगर आप अदालतें उनकी दरवाजे भी इंसाफ के दरवाजे बंद करे तो आवाम किधर जाएंगे। कि मिलिट्री ट्रायल किसी भी सूरत में सिविलियन के नहीं हो सकती। पाकिस्तान में कोई आइन और कानून नहीं है। ये असम्बली इस वक्त जो है ना एक रबड़ स्टैम्प की असम्बली बन चुकी है। पाकिस्तान के खातिर मुज़ाकरात को कामयाब करना चाहते हैं, सिंसियरिटी से बैठे हैं और हम समझते हैं कि जब आप अपने मुल्क के लिए सोचेंगे, अपने लोगों के लिए सोचेंगे तो फिर जो है ना सबको एक संजीदगी के साथ और सिंसियरिटी के साथ बैठना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का मुज़ाकरात के हवाले से किरदार पर सवालात उठाने पर अफसोस का इजहार। कहते हैं कि बानी पीटीआई से मुलाकात ना करवाने पर, मेरे किरदार अदा ना करने पर बेजा तनकीद की जा रही है। मेरा काम हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सहूलत कारी का है। बानी से मुलाकात करवाना मेरा मैंडेट है, ना ही मेरी जिम्मेदारी। ऐसे बयानात देना कि स्पीकर ऑफिस से राबते में मुस्बत जवाब नहीं आया अफसोसनाक है। मेरे दरवाजे सबके लिए हर वक्त खुले हैं। मैंने कभी किसी रुकन कौमी असम्बली से मुलाकात से इनकार नहीं किया और ये सब रिकॉर्ड पर भी है। सरबराह JJI मौलाना फजल रहमान से मीर उस्मान परकानी की मुलाकात हुई है और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और मीर उस्मान ने PB 45 में होने वाली धांधली से उन्हें आगाह किया। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि धांधली ज़दा इलेक्शन तस्लीम नहीं, धांधली के खिलाफ आईनी हक इस्तेमाल करेंगे। फतह इस्तकामत में है, लड़ते रहेंगे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि फॉर्म 45 के मुताबिक उस्मान परकानी वाज़ेह अक्सरियत से जीत चुके, ऐसे इंतखाबात को जूती की नोक पर रखते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए दुनिया न्यूज़।